Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and also completed your previous work of the poem I Am the Music Man. Okay, so in today's class we will start this unit 8 new story, The Mumbai Musician. This chapter or this story is also related with the music. Okay, so in today's class we will complete this story, The Mumbai Musician. Okay, in this story there is one donkey. Okay, he wants to become a musician. वो musician बनना चाहता है and the name of the donkey is Gopu. Okay, he loves music so much. Okay, and he want to become a musician. So in few lines I am summarizing this story, The Mumbai Musician. Okay, so first listen it very carefully and after that we will understand this story from the book. Okay. Yes. Okay, so this story is about a donkey named Gopu. He loves music very much and he also wants to become a musician. Okay, so but dhire dhire he become old and he now couldn't carry the load. Okay, so he decided to go to Mumbai. For what? To become a musician. Okay, at that time on the way when he was going to Mumbai, he met a dog. Okay, and the name of the dog is Dhopu. Okay, and similarly he also met a cat and a cock. Okay, all of them want to become a musician, so they all joined the Dhopu. Or they all joined the Gopu, the donkey. Okay, सब उनको join कर लेते हैं. Okay, so why they all joined? Because they all wanted to become a musician. Okay, so but at that time when they were going to Mumbai, they all become tired and hungry also. Okay, वो थक जाते हैं और भूखे भी हो जाते हैं. So at that time at once they saw a house. वो एक घर देखते हैं. Okay, तो उनको लगता है कि घर है, इसमें कुछ खाना हमें मिल सकता है. So at once they started singing a song. ठीक है, for what? Because they want to tell the people inside the house that they are the singers. वो उनको बताना चाहते हैं कि देखिए हम singers हैं. Okay, तो ताकि वो उनको खाना दे दे. But वो जब गाते हैं तो क्या होता है? The people inside the house got scared of their voice. वो डर जाते हैं. वो क्यों डर जाते हैं? उनको लगता है some ghost has come. कोई ghost आ चुकी है अभी हमारे घर में, तो वो सब उनकी आवाज से डर जाते हैं. And जब फिर वो क्या होता है? सब लोग भाग जाते हैं. They went away from the house. फिर लास्ट में क्या होता है? Cat, cock and dog and donkey together eat the food of the people inside the house. और वो उनका खाना खा लेते हैं. Okay, so this is the story. Okay, so I think in brief you now understood the meaning of or the summary of this story. Now we will see this story line by line from the book. Okay, so it is given on page number 128. You please open page number 128. Okay, and please see the screens also. Now I am reading it from the book. Once upon a time there lived a donkey named Gopu. Okay, so what is the name of the donkey is Gopu. Okay, so once upon a time, एक बार की बात है, there lived a donkey named Gopu. यहाँ पर एक donkey रहता था जिसका नाम था गोपू. He had worked for many years in the house of a farmer. Okay, he had worked for a farmer. ठीक है, बहुत सालों तक वो एक घर में एक फार्मर के लिए काम करता था, है ना. जैसे डंकी है वो बोझा उठाने के काम आते हैं. जो भी फार्म हाउस में या फार्म्स में खेत में जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी चीजें बनती हैं, तो हम उनको एक बोरा बना के उनको बांध के डंकी के ऊपर रख देते हैं. ठीक है, लाइक यू सी हियर. ठीक है, दिस इज डंकी और उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है. ओके, सो वी ऑल्सो से दिस कि डंकी यूज टू कैरी अ वेट, है ना, वो वेट उठाते हैं. ओके, सो he had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory.
है ना, कुछ भी चीज बनाने के लिए फार्म हाउस से या फार्म से वो कहाँ पर आता है, फैक्ट्री में आता है, तब हम उससे कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे शुगर केन से हम चीनी बनाते हैं। तो शुगर केन जब फार्म में प्रोड्यूस होता है, वहां पर बनता है, फिर हम उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, एंड एट देयर वी मेक sugar from the sugar cane. Okay, so he had carried many heavy sacks of corn. What is the meaning of sacks? Meaning of sacks is बोरा, है ना, मतलब आपने देखा होगा गट्ठर या बोरे को जब बहुत सारी चीजें हम एक साथ करके ऐसे बांध दिया है, तो उसको हम, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में जो देख रहे हैं डंकी की, तो वी कैन से दिस इज द सैक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, he had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He was now very tired and old. Now अब वो इतना टाइम हो गया है उसको काम करते करते, तो now he was very tired. अब वो बहुत थक चुका है ऐसा काम करके, and he became old also. वो बूढ़ा भी हो गया है। Okay. Now आगे देखते हैं। The farmer said to Gopu. So one day his farmer said to Gopu. वो गोपू को बोलता है कि you are a good donkey. तुम एक बहुत अच्छे डंकी हो। Take this sack of corn. ये जो कॉर्न का सैक है, गट्ठर है, बोरा है, उसको लो एंड गो एंड सी द वर्ल्ड, और जाओ और दुनिया को देखो, है ना। तो वो उसको अभी फ्री कर रहा है, बिकॉज he had worked for so many years for his farmer. वो उस फार्मर के लिए उसने बहुत सालों तक काम किया, तो अब वो उसको फ्री कर रहे हैं। So now farmer is saying कि please take this sack of corn and go and see the world. Okay, तो अब तुम दुनिया देख सकते हो, घूमो। Before you became too old, इससे पहले कि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओ कि तुम कुछ नहीं चल पाओ फिर पाओ, है ना। जब हम थोड़ा बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं, देन वी फाइंड डिफिकल्टी इन मूविंग हेयर एंड देयर, इन, है ना, हम कहीं इतना ज्यादा नहीं घूम पाते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि बिफोर यू बिकेम टू ओल्ड, यू प्लीज गो विद दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड सी द वर्ल्ड अराउंड। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। Now Gopu smiled and said goodbye. Now he is happy, है ना, गोपू खुश है क्योंकि because he also tired and old, उसको लग रहा है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। तो now with this गोपू smiled, वो हंसता है and said goodbye to whom? To his farmer, वो अपने फार्मर को goodbye बोलता है। He set off towards the city of Mumbai, and now you can see here the mark also, Mumbai लिखा हुआ है ना। तो वो कहाँ पर जा रहा है? मुंबई। Why he went to Mumbai? Because he want to become a musician, और उसको लगता है कि मैं मुंबई में जाकर एक म्यूजिशियन बन जाऊंगा। ओके, सो वो मुंबई चला जाता है। अब मुंबई जाते समय क्या होता है उसके साथ, अब हम देखते हैं स्टोरी में वो क्या हो रहा है। आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं म्यूजिक में अच्छा हूं, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं। सो आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, एंड बी ए म्यूजिशियन देयर, और वहां पर क्या बन जाऊंगा? म्यूजिशियन, है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम होते हैं, इलेक्ट्रिक रिलेटेड काम होते हैं, बिजली से के काम, उनको जो करते हैं हम उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। एंड सिमिलरली जो म्यूजिक बजाते हैं, गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं कोई, तो हम उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। ओके, तो वो क्या बोलता है कि आई एम वेरी, ही थिंक्स दैट कि आई एम वेरी गुड एट म्यूजिक, सो दैट्स व्हाई आई विल गो टू मुंबई एंड बिकम अ म्यूजिशियन देयर, और मैं वहां पर म्यूजिशियन बन जाऊंगा। ओके, so on the way he met a dog. So when he was going to Mumbai, he met a dog there. वो वहां पर एक उसको डॉग मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 129। 129 पर देखिए, अब जब उसको डॉग मिलता है तो डॉग उससे पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? आस्क्ड डोपू। सो व्हाट इज द नेम ऑफ डॉग हियर? डोपू। ठीक है, डोपू नाम है, एंड डोपू आस्क्ड टू डोंकी दैट वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। सो एट दैट टाइम जो गोपू है वो क्या डोपू को बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं तो मुंबई जा रहा हूं। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है, मीनिंग ऑफ दिस टू, TOO इज भी। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं कि मैं मुंबई जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है, तो भी, तुम भी, उसके लिए
टू वर्ड यूज किया है, TOO। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो? आस्क्ड गोपू, गोपू पूछता है, किससे पूछता है? डॉग से। ओके, यस आई वुड, वो बोलते हैं यस आई वुड, मैं आना चाहता हूं। रिप्लाइड डोपू, ठीक है, डोपू उसको बोलता है यस आई वुड लाइक टू कम। ओके, off went the two friends on the dusty road to Mumbai. Now दोनों friends Gopu and Dopu, now they become friends because they both of them want to become a musician and want to go to Mumbai, so they became friend and went on the dusty road to Mumbai. Dusty means जो रेतीला, जहां पे थोड़ा सा मिट्टी या रेत से, जहां पे जैसे रोड है अगर वो साफ नहीं है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी है, रेत है, तो हम उसके लिए बोलते हैं डस्टी रोड। ठीक है, धूल भरा, इन हिंदी एग्जैक्टली हम उसको बोल सकते हैं धूल भरा रोड, जहां पर धूल है, मिट्टी है। सो दे बोथ वेंट टू टुगेदर वेंट टू द मुंबई। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू बोथ ऑफ देम? नाउ सी, अब क्या होता है? दे सॉ ए बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। ओके, अब उनको एक बॉल ऑफ फर दिखाई देती है। ठीक है, फर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ स्वेटर्स भी पहनते हैं विंटर्स में, तो बहुत ही सॉफ्ट और उसमें कुछ ऐसे मुलायम धागे निकले हुए होते हैं, उसको हम फर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन द रोड, दे ऑन द मिडल ऑफ द रोड दे सॉ ए बॉल ऑफ फर। सो हु इज दिस? ये बॉल ऑफ फर क्या है, अभी देखते हैं। वो पूछते हैं हु आर यू, दे आस्क्ड, वो पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो? सो देखिए उसका आंसर क्या आता है, आई एम फरी द कैट। नाउ दिस बॉल ऑफ फर इज कैट, वो क्या है, एक कैट है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द कैट? फरी, FURRY। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे, आपने देखा होगा कैट के ऊपर भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ना, तो इसलिए उसको बॉल ऑफ फर बोल रहे हैं। वो उन्होंने सोचा कि एक ये फर जैसी बॉल क्या है रोड पर, तो जब वो पूछते हैं हु आर यू, तो द कैट रिप्लाइड आई एम फरी द कैट। ओके, मैं फरी हूं, उसका नाम है फरी। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। नाउ गोपू एंड डोपू आस्क्ड टू द कैट दैट वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो म्यूजिशियन बनने के लिए? ओके, सो नाउ सी व्हाट कैट रिप्लाइड। कैट क्या रिप्लाई करती है, अभी देखते हैं। अभी देखिए, डंकी है, उसके ऊपर डॉग बैठा हुआ है। ठीक है, नाउ दे बोथ आर टॉकिंग विद द कैट कि क्या तुम हमारे साथ म्यूजिशियन बनने के लिए आना चाहती हो? तो अब कैट क्या बोलती है, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। वो बोलती है ओह मैं तो बहुत पसंद करूंगी तुम्हारे साथ आना, मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। ओके, सो शी ऑल्सो एग्रीज कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। So off went the three together to become Mumbai musicians. अब ये तीनों मुंबई म्यूजिशियंस बनने के लिए चले जाते हैं। तीन कौन कौन है? वन इज डंकी, उनको मिला डॉग, एंड थर्ड इज कैट। नेम ऑफ द डंकी इज गोपू एंड नेम ऑफ द डॉग इज डोपू एंड नेम ऑफ द कैट इज फरी। ओके, सो they three together went to मुंबई। वो फिर मुंबई जाते हैं। अब फिर देखिए मुंबई जाते, फिर उनको कौन मिलता है? Soon they met कुकू द कॉक। अब उनको कुकू मिलता है, उसका नाम कॉक मिलता है जिसका नाम है कुकू। I love music and wish to join your band. Okay, so Koku said to three of them that I love music, मुझे भी म्यूजिक पसंद है, and wish to join your band, मैं तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं उसमें उनको, जब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं हम उनको बैंड बोलते हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है कोई बहुत अच्छा तबला बजाता है, कोई बहुत अच्छा उसमें हारमोनियम बजाता है, कोई अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं और उनमें से कुछ गा रहे हैं, तो जो ऐसे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं उनको हम एक बैंड बोलते हैं, BAND। ओके, सो कुकू क्या बोलता है कि आई लव म्यूजिक, मैं भी म्यूजिक को बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, और तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, सो नाउ कुकू ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन देम। नाउ अब क्या होता है देखते हैं। दे ऑल रीच्ड ए हाउस। अब वो
इतना दूर चले गए हैं, धीरे धीरे उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अभी आप देखिए, दिस इज डंकी, देन डॉग है उसके ऊपर, डॉग के ऊपर कैट चढ़ गई है एंड कैट के ऊपर कॉक आ गया है ना। तो ये चारों अब मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे हैं। नाउ what happened that they all reached a house with a light। ठीक है, उनको एक घर में एक रोशनी दिखाई देती है, तो वो एक घर में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो बहुत थक गए हैं। They were tired, थक गए हैं, and hungry means भूखा होना। अब उनको भूख भी लग गई है ना, in between उन्होंने कुछ नहीं खाया है, so they all become very tired and hungry also, so they reached a house। वो एक घर में पहुंचते हैं। They peeped in through the window and saw a table with delicious food। Okay, what is the meaning of peeped? P-E-E-P-E-D। पीप्ड का मीनिंग होता है जब कोई, जैसे सपोज देयर इज वन विंडो और आप उस विंडो में से झांक कर अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इन हिंदी वी कैन से द मीनिंग ऑफ पीप इज झांकना। जब हम किसी चीज के थ्रू दूसरी तरफ देखते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पीप, P-E-E-P। ओके, सो दे फोर टुगेदर पीप्ड इन थ्रू द विंडो। वो खिड़की में से झांकते हैं एंड सो ए टेबल, और एक टेबल को देखते हैं with delicious food। delicious, what is the meaning of delicious? meaning of delicious is स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी फूड है, वो उसको देखते हैं। तो एक घर है, उस घर में बहुत खाना रखा हुआ है एक टेबल पे, तो वो विंडो से देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो बहुत खाना है, बहुत अच्छा खाना है, और उनको भूख भी लगी हुई है। सो दे ऑल बिकम वेरी हैप्पी कि अच्छा अब तो हमें खाना खाने के लिए मिल सकता है। ओके, सो व्हाट दे डिड, फिर वो क्या करते हैं, दे डिसाइडेड टू सिंग to let the people inside know that they were musician। Okay, so at that time they decided to sing। वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम एक गाना गाना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो लोग हैं घर में उनको पता चल जाए कि वो क्या है, म्यूजिशियन है, वो सब क्या है, म्यूजिशियन है। लाइक सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पर सब ये बैठे हुए हैं, है ना, ये गाना कुछ गा रहे हैं, मुंह उनका ओपन है, और यहाँ पे घर में देखिए कुछ लोग हैं। ठीक है, तो वो वहां पर बैठ के गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि लोगों को पता चल पाए कि दे वर म्यूजिशियन। लेकिन अब क्या होता है, उनके गाने गाने के बाद, लेट्स सी, दे सैंग, वो सब गाना गाते हैं। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। ओके, सो नाउ द पीपल इनसाइड द हाउस थॉट दैट कि सम घोस्ट हैज कम, एक भूत आ गए हैं, है ना। घोस्ट मतलब होता है भूत, तो some ghosts had come to scare them। scare का मतलब होता है डरना। ठीक है, सो अगर हमें किसी चीज से को देखकर डर जाते हैं, for that we use the word scare, S-C-A-R-E। Okay, so the people inside the house thought that the ghost has come to scare them। कोई भूत आ गया है उनको डराने के लिए। Okay, so they ran away as fast as they could। तो वो सब डर के भाग जाते हैं। जब हमें किसी से डर लगेगा, कोई चीज ऐसी हम सोचेंगे कि अच्छा भूत आ गए या हम किसी से डर रहे हैं, तो we obviously ना ran from there, तो हम वहां से भाग जाएंगे। So they ran away as fast as they could। तो वो जितना भी तेजी से भाग सकते थे वहां से भाग जाते हैं। अब क्या है, अब वो लोग तो भाग गए, अब जो खाना जो वहां पर रह गया वो किनको मिल जाएगा, उन चारों लोगों को, है ना। सो गोपू, ढोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस। ठीक है, जो गोपू, ढोपू और फरी उस घर के अंदर जाते हैं एंड एट द फूड, और खाना खाते हैं। ठीक है, टिल दे कुड ईट नो मोर, और वो तब तक खाते रहते हैं जब तक कि उनका पेट नहीं भर जाता कि वो और ना खा पाए। ठीक है, तो जितना भी खाना था वो बहुत सारा खाना वहां पे खा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे, और जब तक कि वो और ना खा पाए तब तक वो खाना खाते रहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी of the Mumbai musician we can say this is the story of a donkey who wants to become a musician. So that's why he left his master and went to Mumbai, and on the middle of the way, the donkey met so many animals, like we can say the dog, the cat, the cock। okay, और वो सब उसको ज्वाइन करते हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। बट
in the last, finally they all become very hungry and tired also, so they saw one house and also saw delicious food inside the house. वो वहां पर खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है. So they all decided to sing a song so that the people inside the house came to know that कि some singers has come, है ना, कि कोई गाना गाने वाले आ गए हैं, तो वो गाना स्टार्ट कर देते हैं. बट उससे क्या होता है कि वो लोग डर जाते हैं. जो लोग अंदर हैं, दे बिकम वेरी स्केयर्ड एंड लेफ्ट द हाउस, और भाग जाते हैं वहां से. और फिर पीछे से क्या होता है कि ये सब लोग मिलके वो सारे खाने को खत्म कर देते हैं. ओके, so this is the story. I think this story is very interesting. You will find when you read this story, you will find it very interesting. You please watch this video again and again. जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाए, आप इस वीडियो को देखते रहिए. And if you have any problem or any doubt or you find any word difficult जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, you can ask me. Okay? You can ask me in the next class. You please mark that word, जो भी words हैं आप उनको वहां पे mark कर लीजिए, और next class में आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, you please watch this video before the next class. Okay, so thank you very much and take care.